begin with record. So welcome to Friday Fiesta. प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ फ्राइडे फिएस्टा आना आप. सो वेलकम टू फ्राइडे फिएस्टा. और हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी बातें और बहुत सारी गपशप, और हम सब मिलके ये प्रेम की जर्नी में आगे बढ़ते ही रहेंगे. सो मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में. आओ सब मिलके करे मस्ती 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 मस्ती. Let's do masti. Let's have lots of fun. This journey is full of fun and joy. This changing ourselves is really just requires just a little more fun, a little more energy, a little more enthusiasm, and just becoming like childlike. This is a journey to be a child. And बच्चा करता क्या है? बच्चे को सिर्फ चाहिए मस्ती और मस्ती, धमाल, खेलना है, सब कुछ उसके लिए मस्ती है. पढ़ाई भी मस्ती है, स्कूल भी मस्ती है, खाना भी मस्ती है, सब कुछ मस्ती है. And imagine if our life also becomes that way, कि हम सब कुछ मस्ती में करें, वो जोश में करें, वो उत्साह और उमंग में करें, वो प्रेम में करें. Imagine our life, how our life will be. So thank you once again, and thank you अंजलि, कमलेश and नरेश जी. आपके वीडियो ऑन रखा है, और बाकी सारे लोगों को भी मैं प्लीज इनवाइट करती हूँ कि please switch on your video. I really would love to see your face and love to see. Yes, thank you Diksha, thank you Harish ji, thank you for switching on your video, and I request all others also to switch on your videos. So हम राह देख रहे हैं भगवान अंकल की, कि भगवान अंकल ज्वाइन करेंगे और ये करेंगे. उससे पहले चलो before भगवान अंकल join in, I want all of you to write it down. What is the self-damaging habit you think it is for you? So I want all of you, because सबको आदतें रहती है, मुझे भी ये कुछ आदतें हैं, सबको अपनी अपनी आदतें रहती है, which is not empowering ourselves, but which is damaging my life, can be. And if I will just drop that habit, that this habit dissolves, then I can see a huge shift even in my life. So what, according to me, what is my self-damaging habit, and which I would like to drop and dissolve? So I want all of you to please write it down in the chat box, or you may share it or by switching on your audio. So let's wait. Okay, I would love to read your messages. मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे हैबिट्स रहती है जहां पर हमें लगता है कि काश मुझे ये हैबिट ना होती ना, तो मेरी जिंदगी और खूबसूरत होती और बढ़िया होती. तो सबके पास ऐसी कुछ ना कुछ हैबिट जरूर रहती है. काश मैं इससे ना होता तो मेरी लाइफ और अच्छी होती. सो अगर वो आप जब सोच रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन वही है कि वो क्या है आपकी लाइफ में, वो क्या है? क्या बात है, मुझे किसी का चैट मैसेजेस ही नहीं मिल रहा है. इसका मीनिंग तो है कि किसी को कोई आदत नहीं है और सब अच्छे साफ सुथरे अच्छे हैं. यहाँ बेटा दिस साइड थोड़ा वो इंटरनेट कनेक्शन जरा डायरेक्ट नहीं है. Either you go that side or this side. वो वहाँ पे राउटर है. Okay, so I'm ready. I am really lack of confidence. Okay, Anjali said that what she feels that she's lacking in. Okay, what else? Come on. अभी तो आप लोग सब लोग खिलाड़ी बन चुके हैं, माहिर खिलाड़ी हो आप लोग. कई सारे लोग यहाँ पे मेरे साथ लास्ट 2-3 महीने से साथ है, और ये हर फ्राइडे यहाँ पर शामिल रहते हैं. So I would love to hear from you. Want to hear the habit? Okay, very good. Deepa Singh, thoughts? Yes. Welcome. All the thoughts are welcome. Nothing to fight. And I welcome all the overthinking.
write it down. What else? I'm waiting. यहाँ पे 18 लोग हैं, तो कम से कम मुझे तो 17 लोग हैं, 17 का मैं burnt out situation to quit from things situation. Whoa, what out? Okay. So जब तक वो बोलते हैं ना आग लगे तब भागो भागो वो वाली situation. I'm fine. Okay. So are you all done? Volume is too loud for music. Okay, thank you, Gitika, for sharing that. We'll definitely make it small. But are you all done with it? I'm waiting for your answers. If we are done with it, then let's even switch off the music. We don't need it. Okay. So according to you, done. Okay, according to you, I can see that lack of self-confidence, self-doubt, overthinking, negative thoughts, अपने आप को डराने की आदत. अनुभव से ने पूछा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो है कि हम सब आदतें जरूर रहती हैं और वो आदतें कई आदतें ऐसी हैं जो हमें बहुत एम्पावर करती है. मे बी हम सेल्फ डिसिप्लिन बन जाते हैं, हमारा बहुत सारा प्रोग्रेस होता है, लेकिन कई आदतें ऐसी हैं कि जहां पर हमें ऊपर जाने के लिए हमारा ग्रोथ चार्ट जा रहे हैं और हमें लगता है कि काश ये आदत मेरी निकल जाए तो फिर मेरी लाइफ में और प्रगति होगी. तो वो आदतें कौन सी है जो आपको लग रहा है कि जो आपके ग्रोथ में बाधा रूप बन रही है? तो क्वेश्चन वो है और मैं उसी के आंसर की राह देख रही हूँ आप सबसे. और कई लोगों ने कहा कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने आप को डराने की आदत और कई बार रिलेशनशिप इश्यूज भी है. कई बार हम इतना जब तक आग लगती नहीं है तब तक कुआं खोदते नहीं है ना, वैसा है. लास्ट मोमेंट तक हम डिले करते रहते हैं, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हैं कि अभी मुझे इसमें से बाहर निकलना है या उसको में से छोड़ देना है और भाग जाना है, रनिंग अवे लाइक फ्रॉम द सिचुएशन. तो जब वो सिचुएशन में हो तब उसके ऊपर सॉल्यूशन पे फोकस ना करते हुए सिचुएशंस में हम अपने आप को जलाते रहते हैं और सिचुएशंस में से बाद में ऐसा लगता है कि अभी तो मैं इसमें से बाहर ही नहीं निकल सकती, तब उसमें से भागना है कि बस अभी मुझे भागना है. एंड आई वांट टू रन अवे फ्रॉम लाइफ, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम जॉब, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम माय रिलेशनशिप, आई वांट टू रन अवे फ्रॉम एवरीवन. एंड वो हम राह देखते हैं. सो वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. उसमें उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने आप को सैबोटाज करने की आदत पड़ चुकी है. सैबोटाज करना मतलब अपने आप को पेन में रखना, पेनफुल सिचुएशन में रखना और पेन की एक मजा पड़ गई है. तो वो है डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ हैबिट कि कई बार हमको लगता है मैं ये करना लगता है सोचते हैं मैं एक मैसेज चेक कर लूं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख दूं क्या आया है क्या नहीं आया है. सो डिस्ट्रैक्शन सो वन ऑफ द हैबिट. यस, and self love is based on always I'm evaluating my loving myself based on how much I'm earning. yes. सो जहां पर मैं अपने आप को तब ज्यादा प्यार करूंगी जब मुझे ज्यादा सफलता मिले, तब मैं अपने आप को ज्यादा प्यार करूंगी. अगर सफलता मिली या कम मिली तो अपने आप को कम प्यार करूं. वो भी एक आदत हो गई. बहुत अच्छा, थैंक यू. लैक ऑफ डिजर्वेबिलिटी, लैक ऑफ डिजर्वेबिलिटी का मुझे लगता है कि अरे मैं तो इसके
मुझे कौन देगा, मुझे मुझे कहाँ से ऐसा मिलेगा, मेरे पास ये सुख कहाँ आएगा, मुझे कौन पसंद करेगा, मुझे कौन बिजनेस देगा. सो ऑल द टाइम मैं अपने आप को छोटा बनाती रहती हूँ, एंड आई डोंट फील दैट आई एम वर्दी. एंड दैट इज ऑल्सो माई हैबिट, to not make myself feel small about myself, not valuing my being. That is also my habit. Okay, great. और आप लोग सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हो. मैं ये सब बोलती हूँ, मैं बड़बड़ बड़बड़ करती रहूंगी, लेकिन आप लोगों को हाथ उठाना है कि हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो. यू एटलीस्ट मुझे वो वैलिडेशन, मुझे वैलिडेशन की आदत है. मुझे सेशन के दरमियान आप लोगों से वैलिडेशन मिले उसकी मुझे आदत है. ओके, कंटिन्यू. Seeking validation from close family members. Yeah. No matter how right I am, Right. and I can easily decide, but yet I want that final Stamping. And if that stamping is against what I am, which I truly feel, I'll just change just because I feel that Okay. they are always better than me. And Okay, okay. So हमेशा वो सोचना कि मैं सही नहीं सोच सकती हूँ, मैं कितना भी करूँ कितना भी सोचूं, लेकिन जब मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे हाँ बोलेंगे कि हाँ श्रेया तू एकदम सही कर रही है और सही सोच रही है और सही आगे बढ़ रही है, तभी मुझे लगता है कि ओके मैं ठीक कर रही हूँ. और अगर मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स से वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, then I feel I am doing something wrong. So all the time for my own decisions in my life, I am depending on others, and that is also one of the habit which one wants to come out of it. कि अरे कितना डिपेंडेंसी है, उसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपने आप पे भरोसा ही नहीं है, मैं भी सही डिसीजन, उसका मतलब क्या हुआ, यू नो, डाउटिंग योर इनर बीइंग. अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उस आवाज को हम बोल रहे हैं जस्ट शट अप, यू कैन नॉट बी राइट, ओनली माई ब्रदर एंड माई मदर एंड माई सिस्टर एंड माई हस्बैंड कैन बी राइट. जब वो लोग हाँ बोलेंगे तब तू हाँ, और जो वो लोग ना बोलेंगे तो तू गलत, then just अपना मुंह बंद कर लो. How much we are in denial of that inner being. कितना अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं ना, मैंने सोचे भी नहीं थे ऐसे जवाब आना, बट बहुत बढ़िया आप लोग ऐसे शेयर करते रहो, then even I feel good. Anubha said that now I have started loving myself totally and so good. It's slow but yes it has happened. Okay, nothing is slow, nothing is fast. We are in the journey of love till the last breath of our life. So ये प्यार जो है ना एक समंदर वाला प्यार है, तो हमें बस आगे बढ़ते ही रहना है. अगर समंदर कभी बंद होता है कभी खत्म होता है नहीं, और उसी तरह से हमें ये सेल्फ लव की जर्नी में हमें आगे बढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते रहना है. ओके, गीतिका से अनदर बैड हैबिट इज ओवरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग फीलिंग. गीतिका आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग कभी आती है, क्या बता सकोगे जरा? Unmute yourself and Sarah, please share. In all situation, future related, क्या होगा मेरा फ्यूचर में, तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा ऐसा हाल है वो, तेरा क्या होगा कालिया. सो ये सिचुएशन है कि मेरा क्या होगा, और उसका मतलब क्या है कि मुझे आइडियाज आती है, अपॉर्चुनिटीज भी आती है, लेकिन मैं अपने आप को डराती हूँ और बोलती हूँ कि क्या मैं सही होगी या नहीं, और क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, और जिसकी वजह से आई फील ओवरवेलमिंग. और ओवरवेलमिंग होने से मैं अपने आप पे ही डाउट करना शुरू कर देती हूँ, और फ्यूचर रिलेटेड सारी सिचुएशंस में मुझे लगता है ओ माय गॉड, एम आई केपेबल इनफ, ओ माय गॉड. यू नो, जब ये फ्राइडे फिएस्टा मैंने शुरू किया था तभी मेरे दिमाग में भी वही आ रहा था कि पता नहीं मैं हर फ्राइडे कौन सा टॉपिक लेके आ जाऊंगी अभी, और क्या बातें करूंगी और किस तरह से हम मस्ती करेंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं. मतलब है बातें, लेकिन फिर भी हर फ्राइडे, मतलब अभी तो 22 सेशन हो गए और आज तो शायद 23 या 24वां सेशन है, इवन आई डोंट रिमेम्बर. तो मुझे अपने आप पे डाउट लगता था उस समय जब मैंने शुरू किया ना कि मैं कमिटमेंट कर रही हूँ, तो मुझे भी ओवरवेलमिंग लग रहा था कि होगा या नहीं होगा. और अभी भी मुझे लगता है, यू नो, इवन नाउ आई फील अरे मैं ये टॉपिक पे बोल चुकी हूँ, ये टॉपिक मैंने ले लिया, ये टॉपिक मैंने ले लिया, अभी कौन से टॉपिक पे बात करूँ. और मुझे ऐसा लगता है कई बार कि अगर मैं बोलूंगी तो इन लोगों को लेके अरे श्रेया तो वही का वही बकवास करती जा रही है, हमारे सामने वही का वही बोल रही है, कौन सा नई बात बता रही है, वही तो टॉपिक है, वही तो है. एंड यू नो दिस इज वेयर इवन आई फील ओवरवेल्म्ड कि क्या करूंगी, क्या होगा. फिर वो भी वैलिडेशन आता है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, क्या होगा.
फिर ये लोग नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम होते जाएंगे क्या आने के लिए, फिर सिर्फ मैं 2-4 लोगों के साथ बैठूंगी हर फ्राइडे फिएस्टा, ये सारे थॉट्स, यू नो व्हाट, ऑल दीज थॉट्स, उसकी वजह से मुझे क्या होता होगा, ओवरवेलमिंग फील होता है, आई फ्राइटन माई सेल्फ, आई एम इन टू नेगेटिव थिंकिंग, आई एम इन टू फियर्स एंड डाउट्स, इजंट इट? एंड ये सारे लोगों के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी, कोई दूध की धुली हुई नहीं हूँ, और इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी वही होता है कि आई फील कि क्या होगा, कैसे होगा. सो वी विल कम टू इट as the session says, we will come to it. Gitika said and execute nothing. वो मैं समझी नहीं तुम्हारा execute nothing. गीतिका अगर तुम बोल सकते हो तो अच्छी बात है. Okay, anyway तुम्हारा कुछ बाकी हो गया, so everything has covered. Okay, so ये सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं कि ये सारी चीजों का कारण क्या है, ये सारी चीजें आने का कारण क्या है, what do we think, what is the source of all these things, source of overthinking, source of doubting myself, source of frightening myself, source of lack of confidence, source of addiction कि मुझे दारू के बिना, सिगरेट के बिना चलेगा ही नहीं, मुझे ओवर ईटिंग के बिना चलेगा ही नहीं. सो एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नो एडिक्शन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दारू सिगरेट, हम सबको एडिक्शन है. अगर आप लोगों में से कोई है एडिक्टेड दारू या सिगरेट का, आप, हम सब आपकी कंपनी में हैं, आपके साथ, आप अकेले नहीं हो. बताइए क्यों आप अकेले नहीं हो, बताइए क्यों. इवन नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिव थिंकिंग इज एन एडिक्शन, क्योंकि ये वहां पर आपका अंदर के जो हार्मोन्स के चेंजेस है, अंदर हार्मोन्स जो है हमारे, डोपामाइन जो हार्मोन्स है जो हमें किक देता है हमारे अंदर. सो जब मैं अपने आप को छोटा फील करती रहती हूँ, छोटा फील कर रहती हूँ, छोटा फील करती रहती हूँ, देयर इज सम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड मी, और उसमें भी मुझे किक मिलती है, अपने आप को छोटा बनाने में मुझे किक मिलती है. It can be overthinking, it can be criticizing and complaining. Complaining is also an addiction. It is like gossiping. Gossiping is also addiction. 4 लोग मिले नहीं कि पांचवे की गॉसिप शुरू हो जाएगी. और स्पेशली अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग सब वॉक करने जाते हैं ना, ज्यादा करके सब लोग नहीं, उसमें से कुछ लोग, तो अगर जो 4 लोग वॉक करने जाएंगे ना, तो उस दिन वो पांचवे की गॉसिप जरूर हो रही होगी, और जिस दिन वो 5 में से 4 आएंगे और एक नहीं आएगा तो उसकी गॉसिप जरूर हो रही होगी. सो ये गॉसिपिंग भी जो है ना, बहुत आदत है हमें. और कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब जाती हूँ ना सोशल मीटिंग में, तो मुझे लगता है मेरे पास तो बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं है, क्या बातें करो. हाँ, अप्रिशिएट कर लिया, अप्रिशिएट किया तो भी आधा घंटा 1 घंटा तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो क्या बातें करो, बातें करने के लिए टॉपिक ही नहीं है. लेकिन आप गॉसिपिंग शुरू करो, देखो एकदम हॉट टॉपिक बन जाता है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक कोई नमक डालता है, कोई मिर्ची डालता है, कोई तड़का डालता है, और बहुत अच्छी गॉसिपिंग बन जाती है. गॉसिपिंग इज ऑल्सो एन एडिक्शन. तो जो लोग यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे सिगरेट या दारू का एडिक्शन है, आप अकेले नहीं हो. ये सारी चीजों का सोर्स एक है, और ये सोर्स से ये सारी चीजों का जन्म हुआ है. और वो सोर्स क्या है? दैट इज द मोस्ट सेल्फ डैमेजिंग हैबिट. और अगर हम ये हैबिट्स से धीरे धीरे बाहर निकल जाए तो बहुत ही जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है. और वो हैबिट है जजिंग की. Constantly we are judging. Constantly I am judging myself कि श्रेया तेरा टॉपिक कैसा है, तेरे टॉपिक तू बात करेगी, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, तू क्या स्टोरी बताएगी, तू कौन सी क्या बताएगी, एग्जाम्पल देगी. और मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को जज कर रही हूँ और डाउट कर रही हूँ. कॉन्स्टेंटली यू नो वी आर जजिंग जजिंग जजिंग. Nobody loves me, nobody likes me, they are never happy with my work. Every time, you know, there is a thought. Is this thought empowering me? No. All the time हमें
आदत पड़ गई है अपने आप को जज करने की, और ये आदत की वजह से हम we start going into all these small canals of self doubt, negative thinking, overthinking, and जब वो करके भी हमें ये मिलता है कि अरे यार आई एम गुड फॉर नथिंग, तो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एंड देन वी गो इनटू एडिक्शन, and then we go into overeating or excess sleeping, and then we go into procrastination, and then we go into cigarettes, alcohol, and all the rest of the things. So these are the root cause of all of this is judging myself and constantly judging others. Now अभी मैं आप लोगों को और एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, and in this exercise I would like to invite all of you, be honest, and I'm not going to ask you for this, मैं नहीं बताऊंगी कि आप मुझे बताओ, because it is a very personal thing. मैं आप लोगों को वो बोल रही हूँ कि just be honest and think about your loved ones or your office staff. Whom are you judging? Whom are you judging? Think about it, and you have to write it down. So I'm going to put the music, and after that music we are going to have meditation also. So I want all of you to just go through in your own life, where am I judging myself, where am I judging others. So let us begin. Take your paper, take your pen and start writing. देखो मेरे सेशंस जो है ना इंट्रोस्पेक्शन के बिना होते नहीं है, बिकॉज सिर्फ बातें करके, खाली कोरी बातें करके तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक मैं मेरे भीतर जाके उसके ऊपर गौर नहीं फरमाऊं कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैं आप लोगों को इनविटेशन दे रही हूँ। अगेन आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू दैट प्लीज go through in your own life and check out whom are you judging. The question is, आप किसको जज कर रहे हो? किस किस को जज कर रहे हो? अपनी पत्नी को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने स्टाफ को, अपने बॉस को, अपने भाई बहनों को। जिस चीज का आप नाम लिखोगे, और सबसे सबसे एक और दो तो बड़े विलन होते ही हैं जिसको हम जज करते रहते हैं। एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जहाँ पर हम जज करते रहते हैं। सो व्हाट इज जजिंग, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जजिंग टुडे। वेयर एम आई जजिंग? एंड दैट इज द क्वेश्चन। जजिंग मतलब अरे यार मेरे में तो ये काम कमी है, मेरे में तो वो कमी है, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी वो नहीं कर पाऊंगी। मेरे अंदर जजिंग मतलब मैं मेरे लव्ड वंस को जज कर देना होगी, उनके अंदर तो ये कमी है, उनके अंदर वो कमी है, वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जजिंग ऑल द टाइम, हमारा जो जजिंग का जो मैकेनिज्म है ना वो कॉन्स्टेंटली चालू है, क्योंकि हमें चाइल्डहुड से उसके ऊपर हमारे अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है जजिंग के ऊपर। तो लेट अस जस्ट फाइंड आउट दैट वेयर आर वी जजिंग। यस, वी आर ऑलवेज जजिंग। थैंक यू Deepa for sharing that. Yes, we judge everyone, positivity or negativity. We keep on judging all the time. So I want you to write it down. Go within and write it down. Where am I judging my husband? Where am I judging my mother, my father, my wife? Where am I judging my brother, my sister, my boss, my colleagues, my staff? Where am I judging? Welcome, Bhagwan Uncle.
done with your writing, please share your thumbs up. But I want all of you to genuinely write and go within and introspect. Once you are done with your writing, introspection, please share your thumbs up. And please, I request all of you to switch on your video. I feel better connecting with your videos, with your, please switch on. Thank you. I hope you all know the question. What is the question? Where are we judging constantly? Judging our own self. कहाँ पर हम अपने आप को जज कर रहे हैं constantly और कहाँ पर हम दूसरों को भी जज कर रहे हैं constantly. Especially जो हमारे loved ones हैं, हमारे husband, wife, हमारे रिश्ते में हमारे भाई बहन, पति पत्नी, जो mother, father, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, लोगों को, हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ, जो भी है सब जहां पर भी हम जज कर रहे हैं. Once you are done with your writing, we will continue. जब आप लोग लिख रहे हो और लिखते वक्त आप just observe करो कि what are the emotions coming on the surface, what are you feeling in your body, because ये जो सारे emotions जो है हमारे शरीर के अंदर locked है, हमारे हर एक cells में ये सारे emotions locked है. तो जब ये आप लिस्ट बना रहे हो, it is very important to observe the feelings and emotions in our body, कि शरीर के कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक इमोशंस हम शरीर में फील करते हैं. हमको लगता है हम दिल में इमोशंस को महसूस कर रहे हैं. We feel it in our body. Our body is closely connected to the emotions. टांगों तो मैं देखती हूँ ना, जितना चाहिए उतना देखती हूँ.
Okay, so are you all done? I hope that you all must be done with this. Or are you writing? ये both ये बहुत signature papers हैं. So, अरे है बहुत है. कोई कुछ देखो. और जितने लोगों ने जो लोग लिख रहे हैं कंटिन्यू करो लिखना. देखो एक तो आपकी स्क्रीन बंद, उसके बाद आप चैट बॉक्स में कुछ ना लिखो, उसके बाद आप थम्स अप भी ना दिखाओ, तो मैं क्या समझूं? मैं तो बोलूंगी लिखते रहो. हाँ? Sorry? ये भी एक अच्छी. एक मिनट अंकल, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया. क्या बोले आप? बोला आपने जो लास्ट बताया ना, तो बोला ये भी अच्छी हैबिट नहीं है. अच्छी हैबिट नहीं है. So, वो लोग मुझे हमेशा गेस वर्क में रखते हैं. मैं वैसा समझती हूँ कि ये सारे लोग सुन रहे हैं, वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और लिख रहे हैं वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. आई डोंट नो, गुड फॉर देम, गुड फॉर मी. नहीं तो मैं आधे घंटे तक बोलती रहूंगी लिखते रहो, क्लास ओवर, चलो बाय बाय, गुड बाय. Okay, great. So thank you very much, whoever is participating in this list, and I completely trust all of you that you all are sincerely, whether your video is on or off, you all are sincerely working on it. So I really trust you, and trust the divinity inside you, within you, isn't it? Otherwise आप ये क्लास में ही ना आते इतने regularly. So I'm just joking, but I completely trust all of you. So मुझे वो कहना है कि जब आप ये सारी चीजें लिख रहे थे, अंदर से क्या फीलिंग आई? फीलिंग्स आप जरूर लिख सकते हो. I don't want to know your comments, whatever you are going through your journey, but I want to know your feelings. What are the kind of feelings which popped up while you were writing? And feelings you write in the chat box. Anger, गुस्सा आया. Yes, जिसको आप जज कर रहे हो उसके लिए गुस्सा आया. Okay, what else? What else has come up for you? What has come up for you? Felt sad, feeling of fed up, okay, guilt, okay, great. Yeah. What else? क्या लगा लिखते वक्त, जब आप लोग लिख रहे थे? क्या लगा लिख रहे थे तो आप लोग? Guilt लगा. Okay, thank you very much. Feeling of being righteous, yes, 100%. Yes. Envy, jealousy भी हुई, ईर्ष्या आई. Yes, Nafiza, thank you for sharing. Okay, what else? What else has come for you? I felt helpless. Yes, helpless लगा. आपको क्या लगा जब ये सारी चीजें लिख रहे थे? तभी मुझे गुस्सा ही लगा. सिर्फ गुस्सा आया. अपने आप पे आया, उन पे आया? मेरे ऊपर भी आया, सामने वाले के ऊपर भी. सामने वाले के ऊपर भी आया, अपने ऊपर भी आया. आपको क्या लगा? I'm a hopeless case. I'm a hopeless case. But enough. Every time I'm writing and still it's Still not it's going coming. fully. हाँ. Yeah, and this is the, and I'm sure यहाँ पे भी बड़ा लिस्ट बनेगा. But this is the benefit of journaling. क्योंकि हमको लगता है हम तो बहुत सोच रहे हैं, हमको तो सब कुछ पता है, हमको सब पता है. लेकिन जब हम जर्नल करना शुरू करते हैं, एंड व्हेन पेपर पे जब चीजें आना शुरू करते हैं, तभी हम वी रियली फील गेट कनेक्टेड विद द फीलिंग्स इनसाइड. मैं जब लिख रही थी, मैं भी लिख रही थी आप लोगों के साथ, और जब मैं लिख रही थी तो मुझे एक अंदर से एक वॉइड फील हुआ. अपने आप के लिए मुझे शर्म भी आई, मुझे गिल्टी भी हुई कि क्या कर रही है श्रेया, क्यों जज कर रही है. एट द सेम टाइम अंदर से मुझे एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आई. एंड जैसे आप लोग सबने भी कहा
कि you felt doubtful for others, you felt helpless, envy, being righteous, felt sad, feeling of fed up, guilt, anger, ये सारी feelings जो आपके ऊपर surface पे आई. और imagine दिन में हम कितनी बार जज करते रहते हैं. आपको क्या लगता है कितनी बार हम जज कर रहे होंगे? एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली लव्ड वंस, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था. We are judging weather, we are judging traffic, we are judging everything, we are judging everything. We are judging internet, we are judging our gadgets, we are judging social media, we are social media में भी हमें ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान ऐसा है, 50 लोगों को देखते हैं और उसको जज करते हैं, अरे यार ये तो देखो ऐसा बोल रही है, ये वैसा बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. कितना constantly we are in the trap of judging, isn't it? Continuously, and this is the most self-damaging habit we are all having. Now imagine जो हमारे loved ones है, जिसके लिए आपने लिखा judging के बारे में, और अंदर से जो सारी emotions हमने महसूस की, हम दिन भर जब judging कर रहे हैं, feel like crying. Thank you Usha for being honest and so authentic. Thank you. आप इमेजिन कीजिए, लो सेल्फ एस्टीम लगी आपको, आप इमेजिन कीजिए जब दिन भर हम अपने आप को जजिंग कर रहे हैं और बाकी की सिचुएशंस को भी जजिंग कर रहे हैं, हमारा चालू है, तो कौन सी एनर्जीज हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भेज रहे हैं? हमें रिजल्ट्स कौन से चाहिए? अच्छे चाहिए. सबको सक्सेसफुल होना है? यस. सबको खुश रहना है? यस. सबको मस्ती में रहना है? यस. सबको बहुत सारा पैसा चाहिए? यस. सबको सब कुछ यस चाहिए, इंक्लूडिंग मी. लेकिन हमारे तरफ से ब्रह्मांड में एनर्जीज कौन सी जा रही है? थ्रू जजिंग. एग्जैक्ट ऑपोजिट ना. ये सारी इमोशंस जो हमने महसूस की, और इवन हम वेदर के लिए भी कई बार जज करते हैं तो हमें कंप्लेंट्स ही रहती है, इजंट इट? ट्रैफिक के लिए भी कई बार हमें कंप्लेंट्स ही रहती है, इजंट इट? जब जजिंग करते हैं, क्या हम वो देखते हैं कि अरे वाह आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत ट्रैफिक है, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आज तो पहुंचने में मुझे 2-3 घंटा लगेगा, बहुत मजे आएगी, मुझे अपने आप के साथ समय मिलेगा, मुझे और कुछ सुनने के लिए समय मिलेगा. वैसा अप्रोच भी हम रख सकते हैं, लेकिन रेयरली रखते हैं. ज्यादा करके हमारा अप्रोच क्या रहता है? जजिंग पे. गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी पे आ जाते हैं, रोड्स पे आ जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली वी आर इन द हैबिट्स ऑफ जजिंग एंड जजिंग. एंड विद द रिजल्ट्स ऑफ जजिंग, व्हाट एनर्जीज आर वी सेंडिंग? We are sending all those energies which are bringing our vibrations and frequencies down, pulling us down. Are they happy vibrations? No. Happy hormones? No. We are all the time pulling our energies. Now imagine आप कोई अदालत में हो, और कोई अदालत में होता है, जज कहाँ होता है? अदालत में ही होता है ना, जज. और सोचो आप कोई अदालत में हो, तो वहां की एनर्जीज कैसी रहती है? वहां की एनर्जीज कैसी रहती है अदालत की? एकदम लो एनर्जी, लो एनर्जीज, राइट? क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स होती है. और क्या होता है? झूठ होता है, सॉरी, झूठ होता है. ईच वन वांट्स टू प्रूव द अदर रॉन्ग, है ना? एक बोलता है मैं ही सच्चा हूं और सामने वाला झूठा है, और दूसरा बोलता है मैं सच्चा हूं और सामने वाला झूठा है, राइट? और क्या हो रहा है? अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस, isn't it? Constantly what is happening? Fighting, arguments, attack, defense, attack, defense, attack, defense. What will be the environment? Completely stressed out. Yes, Kamlesh, completely stressed out. और दूसरा वही समझता है कि मैं सच्चा हूं और वो झूठा है.
और सबको ही वही समझते हैं, जिस पार्टी में जो है वो सब लोग वही समझते हैं, एंड सब लोगों को न्याय चाहिए, और इसीलिए हम सब उसके पीछे भागते रहते हैं। सेम वे एक जज की एनर्जीज या एक कोर्ट केस की एनर्जीज हमें किसी को पसंद नहीं आती है, बिकॉज इट्स अ सिनेरियो ऑफ बीइंग राइचियस, डिफेंसिवनेस, अटैक, प्रूविंग वन सेल्फ। इमेजिन कॉन्स्टेंटली हम जब जज बन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम वो जज की कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर एक अदालत चल रही है, और कॉन्स्टेंटली ये अदालत में कॉन्स्टेंटली देयर इज अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस, अटैक डिफेंस चालू है। नाउ इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, हमारे मन की फैक्ट्री में क्या चल रहा है। और बचपन से हमें इसकी आदत डाली गई है, क्योंकि बचपन से एक बच्चे को सिखाया जा रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये सच्चा है, ये झूठा है, दिस इज अप्रूव्ड, दिस इज नॉट अप्रूव्ड, दिस इज अप्रिशिएबल, दिस इज नॉट अप्रिशिएबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी प्रोग्रामिंग टू दैट चाइल्ड? कॉन्स्टेंटली उस बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग वो कर रहे हैं कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अ जज। Can we allow a child to learn on its own? Can we give that freedom to that child, that let the child learn from his or her own experiences? We don't do that. We are constantly programming a child to be a judge. Because उसको वो अनुभव से constantly जब ये अनुभव कर रहा है ये बच्चा, तब से उस उम्र से हम अपने आप को जज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। एंड विद दैट प्रोग्रामिंग हमें आदत पड़ चुकी है। अभी तो हमें सिखाना किसी को नहीं पड़ता। इवन वो 5 या 6 साल के बच्चे के साथ अगर आप बैठोगे ना, तो आप उसके डायलॉग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके माँ बाप ने उसे क्या सिखाया गया है, क्या प्रोग्रामिंग किया गया है। क्या माँ बाप वो प्रोग्रामिंग किया है कि बेटा एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग माई चाइल्ड, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अवर हाईएस्ट गुड, एंड एवरीथिंग इज ब्लेसिंग्स? Are we looking at life with that perspective? But we are constantly judging and we are draining our energies. और जब मैं अपने आप को जज करें, जैसे मैं खुद मेरे एग्जांपल्स शुरुआत में दे रही थी, राइट? तो ओवरवेलमिंग फीलिंग इज ऑल्सो अ जजमेंट। सो जब मैं अपने आप को मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कितना जजिंग हो रहा है मेरे भीतर, जिसके मुझे पता तक नहीं है। प्रोग्रामिंग, इनबिल्ट प्रोग्रामिंग ऐसा हो चुका है, एंड जिसकी वजह से एनर्जीज इतनी ड्रेन हो रही है। एंड इफ आई एम कमिंग टू अ विटनेस कॉन्शियसनेस, ड्रॉपिंग दैट जज and just witnessing what is happening outside without putting a label of good or bad, without putting a label of right and wrong, how will be my life? Here we are constantly, our ego self is so active that it always wants to defend, it always wants to attack, it always wants to prove. And we are feeding constantly हमारे ईगो सेल्फ को, हमारे अंदर की जो असुरी शक्तियां हैं उसको हम खाना दे रहे हैं constantly by judging and by judging and judging. और जब मैं जज कर रही हूं तो क्या होगा? ये सारी एनर्जीज जितने लोगों ने यहाँ पे लिखी, एक भी एनर्जी ऐसी आई कि वाव एनर्जी थी? एक भी एनर्जी ऐसी नहीं आई, isn't it? So इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे अंदर प्रोग्राम है इतना सारा जजिंग करने का, तो मैं इतनी एनर्जी ड्रेन कर रही हूं, विद द रिजल्ट क्या होगा? मैं अपने आप को डराऊंगी, जो आप लोगों ने शुरुआत में बोला आप लोगों की हैबिट है। मैं बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग में चली जाऊंगी, मैं अपने आप को डाउट करना शुरू कर दूंगी। विद द रिजल्ट क्या होगा? मैं अपने आप को बोलूंगी कि श्रेया तो कुछ काबिल ही नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू आर नॉट गुड इनफ। सो मैं अपने आप को क्या साबित करूंगी? कि श्रेया यू आर गुड फॉर नथिंग एंड यू आर नॉट गुड इनफ। नाउ टू हाइड दिस फैक्ट, दिस इज इट्स अ लाई। जैसे अंकल कह रहे थे कि इट्स एवरीथिंग इज अ लाई, सो दिस इज अ लाई। We all are a powerful soul, but this is a lie when I am hooked to कि Shreya, you are good for nothing.
and this is a lie where I am hooked with. And जब ये मेरे साथ होगा, इससे मुझे अभी भागना है, इसके सामने नहीं आना है, then what will I do? Then I will opt for addiction, overeating, procrastination, and all the multiple things. So what is the root cause? The root cause is, can we just shift from judging to just witnessing? Sakshi bhav mein aana. Can we just shift from judging to blessing, counting our blessing and taking everything as his prasad? Can we move from judging, which is happening from आसुरी शक्ति? मेरे अंदर की आसुरी शक्ति को मैं constantly feed करती रह रही हूँ, constantly feed कर रही हूँ, और अगर मैं मेरे अंदर की दैवी शक्ति के शरण में आऊंगी, then what will happen? I will go more into surrender. That Shreya, everything is happening for your highest good, and everything is his prasad, जिसमें भी आपको श्रद्धा हो. And when I move from Asuri Shakti to Devi Shakti, can I move that? Can I move from my ego self to surrender? Sharanagati mein aana. And that is where we are completely connected with the source energy. And we feel powerful. We feel powerful. Because we are connected with the source energy. Feeling of freedom without judging. Yes, Kamlesh, so true. Consciousness won't allow us. Who has the power? So let us begin with a meditation, and after that we will have Uncle's Laughter Club. So let us close our eyes and now let us analyze whatever we talked in past 45 minutes, more than 45 minutes. Let us analyze. So let us close our eyes and let us surrender ourselves to the divinity within. Let me know if the music is okay. Is it loud? Is it slow? Let me know. It's okay. Yeah, thank you. Let us close our eyes and take a deep breath. लंबी गहरी सांस. और हम हमारे शरीर से जुड़ जाएंगे. हमारे सांसों के द्वारा एक एक सांस हमें हमारे शरीर के साथ जोड़ रही है. हमारी गर्दन सीधी, पीठ सीधी. And let us close our hands. नमस्ते पोजीशन में लेके आएंगे. हमारे हाथ दोनों हमारे आर्मपिट से थोड़े से दूर रहेंगे. हमारे थंब के नकल से हम हमारे हार्ट चक्र को प्रेस करेंगे. And taking a deep breath in. Thank you, my divine. हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, हम सब बच्चे आपकी शरण में आए हैं. And just be in this moment in complete surrender, शरणागति भाव में, पूरे समर्पण के भाव में. हम हमारे चैतन्य से जुड़ जाएंगे. हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना सुनहरी मौका मिला है अपने आप से जुड़ने का,
अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का। ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारी शरीर की तंदुरुस्ती, मन की विश्रांति और आत्मा की उन्नति के लिए जो भी जरूरी है उसमें हमें मार्गदर्शन दे। हम पूरे तन मन धन से, श्रद्धा से उस चैतन्य के साथ जुड़ रहे हैं। हमें शक्ति दे, हमें भक्ति दे, हमें श्रद्धा दे, हमें ताकत दे, हमें चेतना दे, हमें जागृति दे कि हर पल हम जागरूक रह सके। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिन प्रतिदिन हमारी जागृति बढ़ती जाए, हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाए। हे प्रभु, बस तुमसे एक ही मांग है, हमारी जागृति बढ़ाते रहो, हमारे अंदर की चेतना बढ़ाते रहो, हमारी अवेयरनेस बढ़ाते रहो कि कहां पर हम कदम कदम में चूक जाते हैं और कहां पर बार बार हमारे अंदर की आसुरी शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में आए हैं। हमारे भीतर के प्रभु के साथ हम जुड़ जाएंगे, हमारे दैवी शक्ति को हम जगाएंगे। आपके साथ जुड़ जाएंगे। हमारे चैतन्य को जगाएंगे कि हमारी अवेयरनेस बढ़ाओ। हर एक सांस में, हर एक पल में, हर एक कदम पे जो हम फिसल रहे हैं, हमारे अंदर जागृति लाओ, चेतना लाओ। Relax your hands and you can put your hands facing upward. Connecting with our breath, with our body. अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, कैसी रहेगी वो जिंदगी जहां पर हम किसी को भी जज नहीं कर रहे हो? What will be the life if I will drop and dissolve my habit of judging? If I release, drop, let go and dissolve. पूरी जिंदगी एक आशीर्वाद स्वरूप बन जाएगी, कृतज्ञता से भरी हुई। हर एक सांस में धन्यवाद की भावना। दिल से आज हम इस ब्रह्मांड में घोषणा कर रहे हैं, लेट अस जस्ट डिक्लेयर आवर इंटेंशन। हम संकल्प कर रहे हैं कि हम बदलने के लिए तैयार हैं। हम हमारी सारी आदतें बदलने के लिए तैयार हैं।
हम हमारा जीवन, हम हमारी सोच, हम हमारी विचारधारा, हम हमारी जीवन की धारा बदलने के लिए तैयार है। हे ब्रह्मांड, ओ माय डियर डिवाइन, माय यूनिवर्स, bless me, bless all of us. ज्यादा से ज्यादा हमारे भीतर हम प्रेम और करुणा को अनुभव कर सके। ज्यादा से ज्यादा मेरे भीतर मैं कृतज्ञता और धन्यवाद की भावनाओं को अनुभव कर सको। ज्यादा से ज्यादा मैं आशीर्वाद मोड में रहूं। सबको आशीर्वाद, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मेरे दिल से सिर्फ आशीर्वाद निकले। And everything is happening for the highest good. Because we all are unique and special. We all are unique and special. हम सिर्फ हमारी शक्तियों से विपरीत हो गए हैं। We are driven away from the energies which is there inside, which is the source energy. Let us connect with this divinity inside us. हमारे अंदर की देवी शक्ति को जगाएंगे हम। Everything is happening for the highest good. ये जगत एक लीला है और जहां पे जो भी हो रहा है सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। Nothing is right, nothing is wrong. I don't need to prove anything. I don't need to defend anything. I don't need to attack anything. I don't need to be in the trap of righteousness. सब कोई अपना अपना रोल भली भांति निभा रहे हैं और जगत एक माया है। और हम सिर्फ इस माया में कठपुतली बन के बैठे हैं। Let us experience this and just एक बोलने की बात ना रहे, ये हम अनुभव के तौर पे महसूस कर सके इसे। हे प्रभु, हमें सिर्फ आपके आशीर्वाद चाहिए कि पल पल में मैं इसका अनुभव कर सकूं। पल पल में मेरे द्वारा सिर्फ आशीर्वाद निकले, दुआएं ही दुआएं। सबका भला हो, सबका भला हो। Love, this unconditional self-love, is nothing but ceasing all the judgments, and that is the true, the highest form of love. Ceasing all the judgments. और हम सब इस रास्ते में निकल पड़े हैं। और उस प्रभु के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन
हम बदल रहे हैं. Yes, we are changing. We are changing. We are changing. Let us repeat in our mind. I am in the constant state. I am in the constant state of appreciation. I am in the constant state of gratitude. I am in the constant state of gratitude. I am in the constant state of blessing. मेरे मुख से, मेरे मन से, मेरे तन से निरंतर सिर्फ आशीर्वाद और दुआएं निकल रही हैं. मेरे मन से, मेरे तन से, मेरी आत्मा से सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकल रही हैं. सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे. जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे. जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे. पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे. इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे. जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे. अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे. राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे. शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे. इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे. शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे. तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे.
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। हम हमारे अंदर की भीतर की दैवी शक्ति से जुड़ जाएंगे और वही दैवी शक्ति हमें ताकत देगी बदलाव के लिए, एक नई राह पर लेके आगे बढ़ेगी। हम सब बदलने के लिए तैयार हैं और इसीलिए तो हर शुक्रवार को हम सब एक साथ आ जाते हैं। वही दैवी शक्ति, वही हमारे भीतर का चैतन्य हमें मार्गदर्शन दिखाएगा। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सब कोई भीतर की शक्ति की जागृत हो, सबके भीतर की शक्ति जागृत हो और वही शक्ति हमारा हाथ पकड़ के हमें मार्गदर्शन दिखाएगी। वही शक्ति हमें अपने सच्चे सेल्फ से मिलवाएगी, हमारी सच्ची आत्मा से मिलवाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let's come back. Let us come back to this space and let us open our eyes. Slowly and steadily, एक अच्छी मुस्कान के साथ हम वापस आएंगे। आईने में अपने आप को जरूर देखेंगे और अपने आप से कहेंगे, The power which is within me The power within me is creating is creating miracles in my life. ripples in my life. The power within me is The power which is within me within me is creating ripples, miracles in my life. ripples. मेरे अंदर की जो शक्ति है अंदर की जो शक्ति है वो मेरे जीवन में जीवन में चमत्कार पैदा करती है। पैदा करती है। मेरे भीतर की शक्ति से मैं जुड़ रही हूँ। मैं भीतर की शक्ति से जुड़ रही हूँ। The power which is within me The power that is within me, उधर जो miracles in my life. miracles in my I life. am in the constant state of blessings. I'm in the constant state of blessing. I am in the constant state of blessings. I'm in the constant state of blessing. I am in the constant state of blessings. I'm in the constant state of blessing. I am ready to change. I'm I am ready to change. I am ready to change. I am ready to change. So let us turn our habit from judgment to blessings, from judgments to witness consciousness, to judgments to blessings. Blessings, जो भी हो रहा है, सब कुछ भले के लिए हो रहा है। कोई भी कितना भी हो, कुछ भी हो जाए, everything is happening for the highest good. Let us move beyond our righteousness. Let us move beyond right and wrong. Let us move beyond good and bad. Let us move beyond truth and false. Let us move beyond everything. And let us just connect with the power which is within, because everything is happening for the highest good and with His will. So let us just surrender. Sharanagati bhav mein aake, let us be in that blessing mode. Thank you, thank you, thank you. It's 8:41, and Uncle, we will have your session too. And please continue with your laughter. So we will cleanse ourselves, and we will go to we will end our day with your laughter energies. Uncle, unmute yourself, Uncle. Yeah, laughing. Thank you very much, Priya ji. What a wonderful session.
Thank And you. what a wonderful message. And really, it can transfer everyone's life, you know. Thank But you. we have to work constantly. Thank you very much for giving me opportunity also. I'm sorry for the late also. Let us start. Laughter. Yes. जो भी काम करेंगे लाफ्टर के साथ करेंगे तो बड़ा इजी हो जाता है, अच्छी तरह हो जाता है। और खास करके ऐसी बातों को हम हंसते हंसते लेंगे तो बहुत आसानी से हम अपने डीप कॉन्शियस में लेके जाएंगे। जिस दिन ये बातें डीप कॉन्शियस में गई तो वो ऑटोमेटिक होती रहेंगी। शुरू शुरू में हमें करना पड़ेगा, बाद में हमारा ऑटो मोड पे सब चलता ही रहेगा। देखो अभी जो भी गड़बड़ करते हैं ऑटोमेटिक हो जाती है ना, ऐसे ही अच्छी भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए कंटिन्यूअस और कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और श्रेया जी के और क्लास भी ज्वाइन करें, जिससे हमें और डिटेल में और अच्छी तरह कैसे लाइफ में लाने की, क्योंकि एक क्लास में सब नहीं बता सकते हैं। इसके लिए और क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें सारी प्रैक्टिकल डिटेल्स भी आ जाती है और हमारे मूड में चेंज थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर दिस रिमाइंडर। मैं बोलना ही भूल गई थी कि कल ही है क्लास, सेल्फ इमेज पे 4 घंटे का मास्टर क्लास है। एंड आई रियली वुड लव टू सी all of you in that class. You know, it's really very wonderful with deep insight. So I welcome and invite all of you. It's just an investment of rupees 555. So please go for it. So thank you, Uncle, for that reminder, and please continue. Thank you. Please do join and it will really कंटिन्यूस सुनेंगे तो पूरा हमारे माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस में चला जाएगा और लाइफ में आप ही आते रहेंगे। Let us accept everything with laughter. दिल खोल के हंसने का खर्चा नहीं है। क्यों कंजूस? खुद भी हंसो, औरों को भी हंसाओ। हंसने से बहुत बेनिफिट्स हैं, हम बताएंगे। आप खुद अनुभव करके बताओ क्या क्या बेनिफिट्स आपको हुआ पूरी हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में और स्पिरिचुअल साधना में बहुत काम आता है और जीवन की हर बात में भी काम आता है। तो लाफ्टर करना बहुत जरूरी है, जैसे खाना पीना सब करते हो, वैसे पार्ट ऑफ लाइफ लाफ्टर शुड बी देयर। There are few new members, so we welcome them. Welcome new members. सब लोग करो। दोस्तों खाली शब्दों से वेलकम नहीं करो, ऐसा हंस के आइए। आप अच्छे हमारे घर में आए, हम नसीब वाले हैं। आपने हमसे बहुत गुण बताए। मन भी खुश हो जाता, बोला अभी आया और इतना अच्छा बात किया। देखो सच्ची मेहमानगिरी वो है कि आपके घर से कुछ नया सीख लेके जाएं, नई कुछ उमंग लेके जाएं, ऐसी मेहमानगिरी है। हमें अपनी हेल्थ के लिए रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पहले उठते हो बिफोर ब्रशिंग or put small lemon if you wish. Mix and drink it. It's very good for health. Hey! Hey!
ऐसे बोलना जोर से, ए हो सके लुकवार्म वाटर रखेंगे तो और अच्छा है। लुकवार्म वाटर से टॉक्सिस बहुत अच्छे निकल जाते हैं। देखो, हर घर में छोटी छोटी बातें होती है, हो सके तो विंडो खोलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको और बेनिफिट मिलेगा, आई कांटेक्ट होता है। कभी हर घर में छोटी छोटी बातें होती है, तो वहाँ झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, जो बात कहनी है वो ऐसे उंगली करके मैंने कहा था चाय में शक्कर नहीं डालो। कोई बात नहीं, कल से नहीं डालना। देखो, मैसेज भी पहुंच गया, सामने वाले को अच्छा भी लगा, नहीं तो फिर आर्ग्यूमेंट। सब पुरानी आदतों को चेंज करना है हमें। बहुत श्रेया जी ने अच्छा बताया कि चेंज इज वेरी नेसेसरी। तो चलो आज हम हंसते हंसते ये संकल्प पक्का कर देते हैं कि हमें चेंज होना है, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो बोले, आई एम चेंज। मैं अपने को बोलो, जो मैं कहता हूँ मैं 2 बार बोलो, मैं अपने को बदली करने को तैयार हूँ। मैं अपने को बदली करने को तैयार हूँ। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। Change is very easy to change myself. It's fun to change. मैं fun to change. क्यों नहीं मैंने मजा लिया? और ये चेंज होना जरूरी है। मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं प्रॉमिस कि और को चेंज नहीं करूंगा। और खास करके घर वालों को कभी चेंज नहीं करने की कोशिश करो। मुझे गड़े पे पानी डालने जैसा है। घर वालों को कभी चेंज नहीं करो, अपने को चेंज करते हो। वो भी चेंज हो जाएंगे, आप ही। चेंज इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अभी से मैं हर चीज चेंज करके करूंगी। खाली राइट हैंड यूज करती हूँ, अभी लेफ्ट हैंड भी यूज करूंगी। पानी पीती हूँ, अभी बैठ के पीऊंगी। छोटी छोटी क्रिया में छोटा छोटा चेंज लाओ। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी। अभी मैं विंडो नहीं खोलती थी, अभी खोलूंगी। जो खोलेगा वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो वो वहां ही रहेगा। आंखें बंद करके अंदर में फील करें कितनी ठंडक आ गई। हंसने से सारी नस नाड़ियां खुलती है, सब बाहर की ओर निकल जाता है। कितना सुंदर बंदोबस्त परमात्मा ने, प्रकृति ने किया है। गलतियां होती है, उसका निवारण का भी साधन परमात्मा ने दिया है। हंसने से आपके काफी बीमारियां कम हो जाती है। जब भी हम हंसते हैं उस समय एक्सेलेशन करना है, और एक्सेलेशन से सारे टॉक्सिस, नेगेटिव इमोशंस, पुरानी बातें निकल जाती है, क्षमा भाव बढ़ जाता है। तो हर बात में हंसते रहें, हंसाते रहें। लायन लाफ्टर रोज करना चाहिए। आंखें बड़ी बड़ी, टांग बाहर,
योर फेशियल मसल्स बड़ी हेल्दी हो जाएंगी। जिसको हंसने की प्रैक्टिस नहीं है वो, मैं एक उंगली करूं तो एक बार हंसने का, 2 करूं तो 2 बार हंसने का, 3 करूं तो 3 बार हंसने का। हाँ, ऐसे चलो। हो जाएगा। हाँ? कभी कभी घर में शर्म आता है हंसने को, तो ऐसे हंसने का। कोई नहीं देख रहा है। घर की हर एक्टिविटी में आप हंसना जोड़ो, बहुत मजा आ जाएगा। खाने के टाइम खाना बनाते हो हंसो, सब्जी काट रहे हो दाल बना रहे हो हंसो। ना करो, ग्रेटिट्यूड करो खाना बनाने के टाइम। फॉर प्रोटीन, थैंक यू फॉर दाल। हाथ वॉश कर रहे हो, ऐसे खुशी से बोलो थैंक यू वाटर। Thank you, Atal. Thank you, thank you, thank पानी you. आता है, खुश हो जाओ। कहीं आपके घर में पानी भी नहीं आता है। रात को क्रीम लगाते हो, डब्बी खोलो। ठंडा ठंडा क्रीम है। एयरिंग चेंज करती है, हंसती नहीं है, हंसो। मेरे पास कितने अच्छे एयरिंग्स है, डायमंड के है। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू फादर, थैंक यू कंपनी सैलरी देती है तभी मैं लिया। बाल बनाते हो हंसो। ऐसे ऐसे बाल है, लंबे लंबे बाल है। देखो कुछ अलग टाइम नहीं चाहिए, हर एक्टिविटी साथ जोड़ दो। आप शुरू करेंगे, आस्ते आस्ते फैमिली मेंबर भी शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से समय होने को आया है। एंड में हमेशा एक अफर्मेशन करते हैं। हमेशा अपने को बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं जबरदस्त जबरदस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। Do everything. Thank you, thank you, thank you. thank you. Thanks to all of you. Thank you, and I love you, and I love you, and I love you. Thank you, sir. Thank you, Shreya. God bless both of you. Thank you, thank you, thank you. And I was just reading the comments that all of you were showering the comments that you are really enjoying the session. I will just request all of you that please humbly appreciate and share your feedback in Friday Fiesta group. When you are sharing your feedbacks, it is inspiring so many people. ओ कुछ तो हो रहा है ये सेशन में जो इतने लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आपके जिस वो इवन जो 2 लाइन या 4 लाइन के मैसेज से भी आप कितना भला कर रहे हो ये वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए। सो आप लोगों को दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि कंजूसी इसमें मत करो।
तो ये तो फ्री मिल रहा है, तो फीडबैक भी फ्रीली दो, खुले दिल से दो, और उसमें कंजूसी मत करो. सो प्लीज शेयर योर फीडबैक. जितने लोगों ने अगर ये नहीं सुना, आधे से आए जुड़े, अगर आपका कोई सेशन का कोई पार्ट रह गया हो, आई विल बी शेयरिंग द recording of the session in the group itself, so please go through it, and if you want to share it with anyone, feel free to share it. It is on YouTube for not private but public, so anybody can go through it. And कल शाम को 4 बजे हमारा मास्टर क्लास है on self image, that how we are having our self image, which is creating our world, which is creating our reality. So I request all of you that it's just a small 555 rupees investment, but it is worth in spending and investing in yourself for 4 hours. It's a really, really powerful session. So looking forward to see all of you tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Bhavini, you have a question? Yeah, Thank you, yeah. Shreya. Mm. Yeah, good I to see want you to after a long time. yeah. Today I got time, so finally I'm here. So I wanted Yeah. to ask about tomorrow's session. It's Mm. about the self-image. So then we'll be having what it is right now and the ways to change it. It will be on that, on the remedies, or how it's going to be. So definitely we talk about remedies, that what we are carrying, the image, what we are carrying in the mind, that is the most important thing. And this, whatever we are carrying here, the whole world is reflecting that image. So the how we can just change here the image, we can recreate and we can rewrite the image here, and then the world is going to reflect that image. So definitely we are going to reprogram ourselves and rewire ourselves. So we'll have an exercise in that, right? Exercises, there Huh. will be introspection and meditation, visualization, and exercises will be there, affirmation, mirror work, everything will be there. There And will we, be inner child also, we will be including even her child also in that. okay, and will I get the recording in case, because it's 4 hours now? So by chance if Mm. I'm not there in between, then I can watch it later. I'll try to be there, but just in case. Yeah, so you personally, you message me about that, and we will be connecting with us, right? I will be Okay. messaging. Okay, fine. Okay. So I would love to see all of you. See you Thank you. tomorrow. See you tomorrow. Bye. Looking so pretty. This dress is awesome. Thank you. Diwali special. Thank you. Thank Acha. you. Yeah, and the most important thing that the one of my housekeeping staff, she's so good at tailoring also, that I give her all my dresses and my blouse and everything to stitch, even my t-shirts and everything, and she stitches so beautifully. So this is one of her passions, and I always encourage her, and she's the one who's the tailor and the designer behind all my dresses. So Wow. the credit goes to her, and I really feel very privileged to have her in my house, in my family. So thank you so much for all the words of appreciation and all your loving support. Thank you so much, and see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, you, Shreya. Shreya. Good night. Thank Good you. night. Yeah.